given the right to that person कि वो बोले कि वो तालीम का वो बिलीफ जो है गलत है। ट्रेडिशन को बचाना है, वो कल्चर को बचाना है, क्या हमें फेथ को नहीं बचाना है? Faith is also equally important. Rather, faith is tradition and culture is the expression of the faith. Theme is the indigenous communities and their culture and faith towards sustainability and development. Before going into this subtopic, I would like to participate on the main topic, that is diversity, inclusion and mutual respect. When we talk of diversity, the entire creation itself is based on the diversity. The spirit of the nature is diversity. The divine loves the diversity. The God loves the diversity. That's why God has created millions of gods and goddesses so that He likes to be worshipped in the various forms. And appreciating the diversity and accommodating the individual capacity and abilities, goodness or weakness is the inclusion. And they exist, they coexist peacefully by mutual respect. So diversity can be broadly classified into four. Internal diversity. In internal diversity, that is the diversity in gender, as we have seen the earlier session, the LGBT and the various the inborn characteristics and emotions, thoughts, age diversity. Another is the external diversity. The external diversity is the status, the economic, the faiths, tradition, culture, and religion. And the third is organizational diversity that deals with the rules and regulation, diversity in the working environment. And the fourth is world perspective diversity. I think that will be dealt in the next session. As of now, before adding in this G20 agenda, this topic has been discussed and debated in many forums in the world highest forums, but yet we have not found any substantial result or substantial outcome of it. Maybe शायद जो rest of the world है, जो इस topic को समझने में their perspective is different. Maybe they have not got deeper into this topic. So this is very fortunate enough कि इस बार in the presidency of India, ये G20 में ये C20 जो civil 20 में जो शामिल ये इंडिया शामिल किया है, इसलिए now all need to look this particular subject in the perspective of Indian perspective, Indian cultural perspective. इंडियन की जो सोच है, इंडियन जो संस्कृति सभ्यता की सोच है, उस पर्सपेक्टिव में इसको देखने की जरूरत है। ये हमारे संस्कृति में फॉर द इंडियन संस्कृति ये कोई डिबेट करने का, डिस्कस करने का बात ही नहीं है। दिस इज द वेरी जेनेसिस ऑफ द इंडियन कल्चर। दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज। ये हमारे लिए डाइवर्सिटी, म्यूचुअल और इंक्लूजन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट इन पे डिस्कशन का नहीं है, इससे इसको हम जीता है। इफ यू सी टू द वेदास, which is considered to be the more ancient and most ancient and oldest scripture of the world, there also is mentioned the importance of participations of every unit of the society, considering mutual respect and diversity. ये हमारे संस्कृति में ऑलरेडी वेदों से आया हुआ, और आप इसमें वेदों में देखिए, इसमें आपका जैसे हमारे सुबह हमारे जो आचार्य बेगी ने मेंशन कर रहा था, एक कम सत्यम बहुधा प्रदान जो है कि वन ट्रूथ बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। वासुदेव कुटुंबकम, the world is a one family. Sarve bhavantu sukhina, may all be in peace, may all be in happy,
may no one suffer. जो ये जो these principles is in the Indian संस्कृति, ये हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, ये हमारे इतनी सुंदर सभ्यता, इतनी सुंदर संस्कृति, यही हमारी जो इंडिजिनस का संस्कृति भी यही कहती है। हमारी संस्कृति में बहुत सुंदर ये बात है, आप सुखी रहे, आप सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं, ये प्रकृति है। मैं सुखी रहूं, आप दुखी रहे, ये विकृति है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। मैं भले ही दुखी रहूं लेकिन आप सुखी रहे, ये सनातनी संस्कृति है, ये हमारे संस्कृति, ये हमारे इंडिजिनस की संस्कृति, यही चीज हमें सिखाती है। हम अगर युद्ध भी लड़ता है तो धर्म का युद्ध कहा जाता है। तो धर्म युद्ध आपने देखा होगा महाभारत में, रामायण में, दिन में युद्ध लड़ता है, शाम को बातचीत करता है, एक दूसरा से मिलता है, हम धर्म का युद्ध लड़ता है। लेकिन इसके जो नैरेटिव से कैसे चेंज हुआ है, जो वेस्टर्न जो सोच में, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में इस नैरेटिव को क्या है, देयर इज एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर, मतलब जायज है प्यार और लड़ाई, और प्यार प्रेम और लड़ाई में, हर जंग और प्रेम इश्क में हर चीज जायज है। ये जो है गलत नैरेटिव्स, हमारे लिए हर चीज जायज नहीं हो सकता है। अब युद्ध है तो युद्ध का कुछ कानून है, युद्ध का कुछ नियम है, उसको आपको फॉलो करना, कुछ धर्म से, उसको धर्म से फॉलो करना, उसको आप हर चीज धोखा देके जीतना, चल कपट करके जीतना, ये हमारे लिए धर्म नहीं। और जहां तक हम प्रेम का जो बात करता है, जब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में देखने से हम जब प्रेम का जो बात करता है, तो जब लड़का लड़की का, मेल एंड वुमेन को लव, उसको सिर्फ प्रेम कहता है। लेकिन हमारे जो प्रेम है, इसको ईश्वरीय रूप का दिया गया है। आप देखेंगे कि आपका राधा का प्यार, मीरा का प्यार, प्रेम, तो इसमें इससे लेके कबीरदास ने बहुत सुंदर जो दोहा, आप सब जो जानते हैं इसको, पोती पोती पर जन्म हुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम सो पंडित हो। आपको बड़ा इतना किताब पढ़ के भी आप पंडित नहीं होता है, लेकिन ढाई अक्षर, 2.5 letters ऑफ द लव इफ यू नो, आप यू बिकम दैट, आप ज्ञानी बन जाता है, आप पंडित बन जाता है, यू बिकम द नॉलेजेबल। वो सिर्फ लड़की लड़का का प्यार नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कहते, क्योंकि वो जब आपको प्यार मालूम होगा, वो जो प्रेम मालूम होगा, यू स्टार्टेड लविंग एवरी क्रिएचर्स, यू स्टार्टेड लविंग, यू स्टार्टेड रेस्पेक्टिंग ऑल द, आप सबको रेस्पेक्ट करने लगता है। इसलिए कहता है कि जब आप ढाई अक्षर प्रेम का जब आप पढ़ता है, मालूम हो जाता है, तब आपको पंडित बनता है। तो यही चीज हमारे संस्कृति में, हमारे जो इंडिजिनस संस्कृति में, इंडिजिनस सभ्यता में भी सिखाता है। हमारे जो नेचर है, तो यही चीज, वी आर नेचर वर्शिपर। नेचर वर्शिपर होने के वजह से द बिलीफ सिस्टम, द फेथ, द कैरेक्टरिस्टिक वी हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द नेचर। हम वो अपने प्रकृति से वो सब हम ड्राइव करता है। और प्रकृति का आप देखिए, जितना भी हम जो वर्ल्ड में अभी जो चर्चा चल रहा है, जो डाइवर्सिटी, म्यूचुअल इंक्लूजन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, आप प्रकृति में देखने से, यही प्रकृति में कितना डाइवर्सिटी, डाइवर्स, जैसे आसिफिक के प्लांट में भी डाइवर्स है, एनिमल्स में डाइवर्स है, टोपोग्राफी, एवरीथिंग देयर इज डाइवर्स, बट दे आर लिविंग इन अ सिंगल प्लैनेट, वो एक साथ रहता है, एंड दे आर एकोमोडेटिंग ईच अदर बाय म्यूचुअल रेस्पेक्ट। तो ये चीज हमारे जो कम्युनिटी, इंडिजिनस कम्युनिटीज जो है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हमको ऐसा सभ्यता मिला है, ऐसा हमको जो हमारी संस्कृति, जो हमारे पूर्वजों ने जो दिया है, कि हम नेचर से, प्रकृति से ये चीज को सीखने को मिलता है। तो इसलिए ये दुनिया को अभी ये चीज समझना, दुनिया को हमारे जो इंडिजिनस का पर्सपेक्टिव से भी इस चीज को देखा जाना चाहिए। और इसमें क्योंकि जब हम नेचर का बात करता है, तो हमको ये सिखाया जाता है कि एवरी क्रिएचर हैज अ डिवाइनिटी इन देम, मतलब हर क्रिएचर्स में हम क्या देखता है, ईश्वर का रूप देखता है, इसलिए हम उसको पूजा करते हैं। इसलिए हम हर क्रिएचर, चाहे वो आपका कीड़ा हो, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, पेड़ हो, पौधा, जैसे को हम पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि वी सी डिवाइन इन देम। ये हमारी संस्कृति में, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें डिवाइन के रूप नहीं देखेंगे,
until and unless you accept whatever the quality, जो आपका खराब हो अच्छा हो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका म्यूचुअल रेस्पेक्ट आएगा ही नहीं। तो ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट कहाँ से आएगा? When you started seeing others as a divine, others as a divine person, divine spirit, ये हमारे नेचर जो हमको सिखाती है, जो हमारी संस्कृति हमको सिखाती है। तो इसमें जब आता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जब, जैसे मैंने कह रहा था कि जो वेस्टर्न कल्चर का जो उसमें देखने का नजरिया है, शायद उसको गौर से मालूम नहीं है, इसलिए इसको क्योंकि इस इतिहास से लगता है। अगर इतिहास में आप देखेंगे तो जितना भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, दैट इज बीन रूल्ड बाय द यूरोपियन कंट्रीज। अगर आपको डाइवर्सिटी में रेस्पेक्ट है, अगर आपको इंक्लूजन में म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, तो दूसरा देश को आक्रमण करने का जरूरत ही नहीं। सिर्फ आक्रमण ही नहीं, उसको शासन ही नहीं किया, बल्कि अपना जो फेथ, अपना जो कल्चर, अपने जो ट्रेडिशन, उसको इम्पोज किया। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर। दैट मींस यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग देयर कल्चर, यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग देयर फेथ। अगर आपको ये रेस्पेक्ट है तो आपका कैसे आपका कल्चर को, आपका फेथ को आप थोप सकते हैं? तो इसलिए जो अपना फेथ को थोपना, अपना कल्चर को थोपना, ये जो है सरासर मतलब इससे अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर। इसके लिए ये जो कन्वर्जन इज कंप्लीट, आई थिंक आई कंसीडर इट एज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में, मेरी मान्यता में कुछ कमी होगा, डेफिनेटली देयर में भी समझेगी, कुछ कमी होगा, कुछ बुराइयां होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप दबा के, उसको खत्म करके वहां पे अपना संस्कृति आप स्थापित करो, ऐसा नहीं हो सकता। या ये करना चाहिए कि अगर सच में आपको ह्यूमैनिटी के बाद है, ह्यूमैनिटी सर्विस है, तो ये करना चाहिए कि उसका ईश्वरीय रूप को आप जगाइए, उसका कॉन्शियस को आप अपलिफ्ट कीजिए, उसको अपलिफ्ट करके उसका ईश्वरीय रूप को जगा के उसको अपना हिसाब से उसको सुधारने का मौका देना चाहिए, ना कि उसको खराब है बोल के, ना ही वो गलत है बोल के उसको दबा के अपना संस्कृति उसमें स्थापित करना चाहिए। इसलिए इन दिस अगस्त, therefore I appeal कि we need to frame a stringent policy to curb this conversion। ये कन्वर्जन जब हम इस तरह का जब बात करता है तो लोगों को लगता है कि we sounds like a very orthodox। ये क्या ट्रेडिशन का बात करते रहता है, कल्चर का बात करता है, रिलीजन का बात करते रहता है। Now is the age of technology, it's a modern era, it's an age of development, but we are forgetting what is the prime factor of the development? Peace is the prime factor of the शांति ही उन्नति का मार्ग है। और ये शांति कहाँ से मिलती है? शांति जो आपको मिलेगी अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, अपने स्पिरिचुअलिटी। आपको पर्सनल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके आपका वो डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट until and unless you have a spiritual development। क्योंकि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होने से आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमैनिटी का अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। दे कैन बी यूज इन अगेंस्ट नेचर। लेकिन जब आपका पर्सनल, जब आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, जब आप में स्पिरिचुअल ज्ञान आता है, तो वो ह्यूमैनिटी के लिए यूज, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड, फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेचर। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल जो है आदमी को give the sense of belongingness। Spiritual makes you compassionate। Spiritual gives you a love and respect and a sense of sacrifice, sense of selfless, वो आपको देता है। इसलिए spiritual one, another point I want to mention is the whole need to emphasize with the infrastructure and the personal development, spiritual development has to be given a very emphasis। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी। और ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यहाँ से हमारी संस्कृति से, हम लोग सभी जब भी संस्कृति का बात करें, आज जितना भी हमारे जो मुख्य अतिथि है वो भी पूरे अपने संस्कृति के बारे में उसको बचाना है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है कितना काम कर रहा है और भी करेंगे। क्यों? क्या फायदा है संस्कृति को बचाने के लिए? क्यों? अपने ट्रेडिशन को बचाने के लिए क्यों? क्या फायदा है?
क्योंकि ये अपना संस्कृति ही, अपना जो ट्रेडिशन कल्चर ही हमको एक अच्छा इंसान बनाता है, एक समाज सुधारक इंसान बनाता है। तो इसलिए जब हमको ये हमारे संस्कृति को इम्पोर्टेंस अगर आप देता है, अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस देता है, तो ऑटोमेटिकली आपका समाज सुधार जाएगा। उसको अगर इम्पोर्टेंस देगा तो आपका उन्नति होगा। ऐसा कोई ऐसा उन्नति नहीं हो सकता है कि आप जहाँ पे आपका शांत नहीं होगा, आपका पीस नहीं होगा, वहाँ आप जितना भी आप देखिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट किया है, लेकिन उसके अंदर में वो शांति नहीं है। देयर इज नो पीस इन देयर माइंड। कोई फैमिली में शांति नहीं है, समाज में शांति नहीं है, बल्कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेवलपमेंट वो अगेंस्ट में एक दूसरा को यूज कर रहा है। इसलिए इंडिया जो अभी जो इस समिट में G20 में इंडिया इज वेरी राइट कंट्री, राइट नेशन टू गिव द डायरेक्शन टू द वर्ल्ड। तो इसमें जो सस्टेनेबिलिटी का जब बात करता है, तो हमारे जो कल्चर को लेके, संस्कृति को लेके, हाउ वी कैन गो इनटू द सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें हमारे जो कल्चर है, जैसे हमने सुबह अच्छे भाई ने मेंशन किया, वी हैव स्टार्टेड गुरुकुल सिस्टम जिन्हें को इस कमिंग में और नया में, और जो हमारे बसर में मेंजिक में को रेगो, अभी जो हमारे जो पंगिंग में फोटे आदि कम्युनिटी नीलम तुमको, ये जो है हम जब गुरुकुल शुरू करता है, जो अपने ट्रेडिशन कल्चर का, मेनी पीपल क्वेश्चंस कि हमारे यहाँ गुरुकुल होता था, तो कभी ट्राइबल में गुरुकुल सुना है, इंडिजिनस कभी गुरुकुल हुआ है? अभी ये पूरा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन लेके गुरुकुल शुरू कर रहा है। इट्स नॉट दैट, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप माइनॉरिटी सोचेंगे, अगर देखेंगे अपने संस्कृति को आप अच्छा से गौर से देखेंगे, तो हमारे जरूर गुरुकुल होता है। गुरुकुल कैसे होता है? नर्सरी हमारे परिवार का, हमारे वहाँ तो एजुकेशन, हमको पढ़ाई लिखाई, हमारे पूर्वजों में पढ़ाई लिखाई नहीं था, लेकिन समाज को कैसे चलाना है, कैसे अच्छा जिंदगी जीना है, ये हमारे परिवार में। नर्सरी बिगिंस राइट फ्रॉम आवर फैमिली। वहाँ पे हमारे माँ पिताजी हम छोटा छोटा मॉरल बेस्ड स्टोरीज, कहानी बताता है हमारे किसको आदर करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे पेड़ को पूजा करना चाहिए, पेड़ एक करता है, पेड़ को करने से पहले कैसे पूजा करना चाहिए, नदी जाता है तो मछली मारने से पहले हम लोग अंडा को बना के अंडा फेंकता है नदी में, मैं आज मछली का थे, मुझे मछली, ये सब छोटा छोटा चीज फ्रॉम नर्सरी फ्रॉम आवर फैमिली। तो वह फैमिली से जब आता है, तब हमारे जो कस्टम के बारे में आता है, ट्रेडिशन के बारे में जब बात होता है, अपने जेनोलॉजी के बारे में आता है, फोक लोन्स, फोक टेल्स के बारे में आता है, ये जो है क्या है, ये हमारे लिए हायर लेवल का स्कूल से आता है। देन इसके बाद में हम जब जाता है तो समाज में हमारे कॉलेज है, दीज आर आवर गुरुकुल्स, ये हमारे लिए गुरुकुल की तरह ही था। जस्ट उसको अभी टू विद, जैसे राजेंद्र जी ने सुबह बोल रहा था कि वी नीड टू चेंज, वी नीड टू रिफॉर्म, तो हमको definitely we need that reformation, but reformation keeping the essence of our tradition and culture, as keeping the essence of our indigenous, इसलिए ये हमारे रिफॉर्मेशन। तो हमारे उस समय में पढ़ाई नहीं होता था, but then we have that kind of गुरुकुल system, तो इसलिए इसको फिर अभी का मॉडर्न के साथ में हमको भी चलने के लिए हमने ये एक शुरू किया है, एंड वी आर वेरी प्राउड कि वहाँ पे अभी जब देखता है तो बच्चा लोग इतना अच्छा से सीखता है कि दे आर फ्लुएंटली स्पीकिंग देयर ओन मदर टंग, वो अपना भाषा में बात करता है, और उसका रूटीन ऐसा है कि उन लोग को खाने पीने का भी बॉयल खिलाता है, और एक दिन ऐसा रहता है कि उन लोग को जंगल में घुट जाने देता है, लकड़ी लेने देता है, सब्जी लेने देता है, उन लोग को ये पत्ता खाने का चीज़ है, ये पत्ता को नहीं खाने का चीज़ है, इसको तोड़ना है नहीं तोड़ना है, उन लोग को एजुकेट किया जाता है। और वी आर वेरी प्रिविलेज एंड लकी है कि उसमें हमारे जो विवेकानंद केंद्र जो है हमें सहायता दे रहा है, ये फॉर्मल एजुकेशन। इसमें भी बहुत सारा लोगों का कंफ्यूजन है, या ऐसा ब्लेम करता है कि क्या बच्चा को सिर्फ पुजारी ही बनाना है, क्या बच्चा को क्या सिर्फ ट्रेडिशन कल्चर ही सिखाना, क्या वो डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, IAS नहीं बनेगा। फॉर दैट इसलिए हम लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन दिया। फॉर्मल एजुकेशन को विवेकानंद केंद्र में,
और ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज, ये ट्रेडिशनल नॉलेज को हम जो इंडिजिनस फेथ ऑर्गेनाइजेशन हम उसको इम्पार्ट करें। और एम इसकी हमारे जो लोग हैं वहाँ से जो प्रोडक्ट जो ऐसा विद वेल इक्विप्ड विद ट्रेडिशनल एंड कल्चरल नॉलेज के साथ में अगर वो डॉक्टर भी बनता है तो डॉक्टर में क्या अगर जब वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट से दवाई से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते से ही शुड एबल टू चांट आल्सो, वो अपना जो लैंग्वेज में वो पूजा भी कर सकता है। ऐसा डॉक्टर हमको बनाना है। ऐसा इंजीनियर जब जो हमको आर्किटेक्चरल ड्राइंग में ये में उसको कंफ्यूजन होता है जब ट्रेडिशन का बनाना होने से ही शुड हैव दैट ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, कैसे किस बम्बू को कब काटना चाहिए, बम्बू किस सीजन में काटना चाहिए। वी आर वेरी ब्यूटीफुल, हम लोग का इसमें इतना सुंदर ये नॉलेज है कि बम्बू को हम कब काटता है, फुल मून में क्यों काटता है, फुल मून में काटने से टर्माइट बिल्कुल नहीं खाता है। यू नीड टू हैव दैट नॉलेज। क्यों नहीं खाता? क्योंकि बम्बू जब फुल मून में होता है, हम लोग का ये बताया जाता है कि हम लोग का माँ पिताजी ने बताया कि फुल मून होता है तो बम्बू जो है आपका रात पर सुबह जब पूरा जाग के बैठता है, जब फुल मून समय में वो जागता है कि हमको इंसान का जरूरत है, इंसान का जरूरत है, इसलिए हमको रेडी होना है कि इंसान के लिए हमको इंसान ले जाना है, इसलिए वो पूरा जाग के बैठा है, इसलिए टर्माइट उसको नहीं खाता। तो दिस नॉलेज अगर उसके पास इंजीनियर बन के भी ये नॉलेज नहीं होगा, काल को ऐसे बम्बू काट देगा, लगाएगा पूरा टर्माइट काटेगा। लेकिन ये नॉलेज ट्रेडिशनल अगर उसमें नॉलेज होगा तो उसको इतना सीजन करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, लोग टर्माइट नहीं खाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा एजुकेशन देना चाहता है कि जो इंजीनियर बने लेकिन ये नॉलेज जाने, और वो IAS डिप्टी कलेक्टर बनिए, IPS बनिए, SP बनिए, वो अपना कस्टम अपना ट्रेडिशन नॉलेज के बारे में भी उसको पूरा अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। हाँ, लोग के साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में अपना जहाँ में ट्रेडिशन का बात होता है तो वहाँ में अपना कस्टमरी लोग का क्या है ये शुड डेवलप हो। तो ये जो हम देख रहा है कि दिस इज सस्टेनेबिलिटी, जो हमारे इंडिजिनस कल्चर के बारे में जो हम सस्टेनेबिलिटी इसको ला सकता है, दे सकता है, ये हम लोग का कोशिश कर रहे हैं। एंड आई होप कि ये डेफिनेटली आगे तक जाएगा। एंड विद दिस मैं यहाँ पे आई वांट टू मेक a 3 submission in this August forum, as I mentioned. The one is कि हमको जो conversion है, we need to make a stringent policy, frame a stringent policy to curb the conversion because it's against the law of the nature. Second है कि indigenous, the philosophy of indigenous faith and culture need to be encouraged because this is the most eternal, universal and democratic system. इसको ये करना चाहिए। और with the infrastructure development and the personal development, spiritual development must be even emphasized. तो ये मेरा आज का इस अगस्त हाउस में मेरा ये this will be my 3 submission, and with this I conclude my speech. I think before the time. Thank you very much. लेकिन मैं भी ओपनली बोलता हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ। आई एम कन्वर्टेड क्रिश्चियन, आई एम कैथलिक। लेकिन मेरे फादर धोनी को फॉलो करता था। अभी आपने कहा कि बिकॉज ऑफ कन्वर्सन सस्टेनेबिलिटी का इश्यू रहा है और सब खत्म हो गया। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस चीज को किस तरह से प्रिजर्व किया जाए। You go with your tradition, you preserve your culture, tradition, and you also accept a religion called Christianity. And हमारे स्टेट में अगर देखा जाए तो because of the Christianity there have been so many better things happening. ये आपका बात जो कहा है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये डिबेटेबल है। और एक चीज मैं पहलू आप लोगों के सामने रख दूं कि अगर ट्रेडिशन जो हमें सही नहीं लगता है बिकॉज ऑफ द टाइम एंड स्पेस एंड द ट्रांजिशन व्हिच टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ टाइम, क्या उस ट्रेडिशन को हमें कंटिन्यू करना है या नहीं। लाइक मैं तालीम हूँ, तालीम का हमारा नाम होगन कहना ज्ञाता तालीम बोल के निकला है, तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट वेयरिंग दैट एनीमोर। तो वो
डिरोगेटिव के कारण क्या हमारा नाम, हमारा ट्राइब का नाम तारीफ रहना है या नहीं, ये भी एक डिबेटेबल चीज है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू वी have the better things which is good for us for the future, but again how to sustain and preserve our culture, वो सही है या गलत है पता नहीं। और आपने हेड हंटिंग का बात किया है, आपको गलत लग रहा है कि आपको हेड हंटर्स कहा जाता है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिकॉज आप हेड हंटर है इसलिए आपको लोग जानते हैं। सो आई फील इट्स डिबेटेबल, तो आपका बात बताइए इसमें। थैंक यू। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फॉर डॉक्टर रूबी एंड बाय द वे सर आल्सो। थैंक यू। किसी का आपको कन्वर्ट करने से पहले डेफिनेटली आपको ये बोला गया होगा कि आपका तालीम कम्युनिटी का ट्रेडिशन ये गलत है, आपका बिलीफ लोनिपोलो को बिलीफ ये गलत है, बोल के आपने इसमें कन्वर्ट किया। Who has given the right to that person कि वो बोले कि वो तालीम का वो बिलीफ जो है गलत था? मे बी वो उसका उसमें आपका म्यूचुअल रेस्पेक्ट वहीं खत्म हो जाता है। इफ यू हैव द म्यूचुअल रेस्पेक्ट, आप लोग उसका बिलीफ को आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग यू, रदर आपको बोलना चाहिए कि दिस इज, हाँ इसमें मान्यता में कुछ आपका सिस्टम में कुछ प्रैक्टिस में गलत हो सकता है, हाँ, लेकिन इसको आप इस तरह का मॉडल का हिसाब से आप सुधारते हुए बट आप इसको मानिए, ये होना चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। ऐसा नहीं कि आपका ये गलत हो गया इसको छोड़ दो, ये निकाल दो, इसको ब्रेड में छेद के जाओ, आप कन्वर्ट हो जाओ। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर बट एक्टिंग। तो एक सबसे पूछना है, आपने इतना अच्छा से ऊपर से लिखा है जी कम्युनिटी कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस एंड डाइवर्सिटी इंक्लूजन नेचुरल रेस्पेक्ट, और ये सेकंड सेशन है, उसमें टॉपिक है इंडिजिनियस कम्युनिटी एंड देयर कल्चर एंड द पे टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। यस, आई क्लेम आई एम क्रिश्चियन। मैं बाय बात में कन्वर्ट क्रिश्चियन होने से भी अब मैं काली क्रिश्चियन कन्वर्जन हुआ है। कहीं भी आप इसको हमको डिफरेंशिएट अलग करना चाहता है कि क्या इंडिजिनस नहीं, मेरा टाइटल तो नावल में आप एसटी पीआर सब कुछ में बाय बात मेरा जनरेशन सब कुछ नाव में आप लोग बोला है सिर्फ वो इंडिजिनस क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन आप लोग उसको काम करना चाहता है क्या? आप लोग को पैनल लोग कोई मतलब डिसीजन आप पूछना है, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ क्या हम इंडिजिनस नहीं है? वेदर आई एम नॉट इंडिजिनस, यस मैं क्लेम करता हूँ आई एम इंडिजिनस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल ट्राइब है, मैं क्रिश्चियन। But my faith is Christian. I believe in Christianity. But every culture, custom, everything is I am an issue. I follow it. इसलिए आज वो नेचुरल रेस्पेक्ट करके तो आज मैं अटेंड कर रहा हूँ, आज ये मीटिंग कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस में आया, अदरवाइज कोई तो नहीं आना था। ये मेरा मानना है। क्या आप लोग हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी जो क्रिश्चियन फैमिली यहाँ पे बोला इंक्लूजन लिखा है, डाइवर्सिटी इंक्लूजन नेचुरल रेस्पेक्ट। हम सोचा हाँ हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हम कुछ अच्छा प्रोजेक्ट का मतलब फ्यूचर के लिए आने वाला के लिए डेवलपमेंट के लिए स्टेट के कुछ अच्छा के लिए तो कुछ डिस्कशन होगा, तो उसमें आप लोग एक रास्ता किस तरह से निकलेगा, कैसे अपना कल्चर अपना कस्टम को ट्रेडिशन को प्रिजर्व करेगा। आई बीइंग ए इंडिजिनियस क्रिश्चियन, मैं अपना कल्चर कस्टम ट्रेडिशन को मेंटेन करना चाहता हूँ, अपना निश्चित नियम को मेंटेन करना चाहता हूँ। हम लोग मेंटेन करता है, ये ड्रेस का हम जो पहनता है हम अपना से बनाता है, एवरीथिंग इज आई थिंक हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। अभी भी रिचुअल जो आप लोग एक फेस्टिवल में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन फिर आप लोग ये उल्टा पार्टिसिपेट करना आप लोग क्या हम लोग को एलिनेट करना चाहता है कि आप जितना सुबह से जो मॉर्निंग स्पीकर लोग बोल रहे दे आप लोग का वॉइस ऐसे क्रिश्चियन एलिनेट फॉरेनर जैसे। हम तो बोलते आई एम नॉट फॉरेन, आई एम अरुणाचली, मैं यहाँ का इंडिजिनस हूँ, मैं क्रिश्चियन पेट में विश्वास जरूर करता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइबल and my identity is I'm indigenous of Arunachal Pradesh। तो आप लोग उस चीज़ को क्या डायरेक्शन आप लोग ले जाना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। ये इसका यहाँ पे क्रिश्चियन प्रीडोमिनेंट है, इसलिए हमारे क्रिश्चियन भाई को जब भी वेन वी टॉक अबाउट कन्वर्जन वो डायरेक्ट लगता है कि हम कोई बोल रहे हैं। कन्वर्जन कैन बी ए हिंदू, कन्वर्जन कैन बी मुस्लिम। आज आप क्रिश्चियन
काल को हम नहीं चाहते हैं कि जो सदियों से क्रिश्चियन है उसको दोनों पोलों में कन्वर्ट करो, ये भी नहीं हो। हम लोग का तो सीधा यही है, कोई भी रिलीजन हो आप उसको कन्वर्ट, आप क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन वाला को दोनों पोलों में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। कौन कन्वर्ट, क्यों कन्वर्ट कर देगा? आप क्रिश्चियन खराब है बोल के आप बोलने वाला कौन होता है क्रिश्चियन खराब है? वो पहले से सदियों से प्रैक्टिस करके आ रहा है, उसको क्यों कन्वर्ट करेगा क्रिश्चियन में? जो पहले से हिंदू में करके आ रहा है, हिंदू खराब है बोल के आप उसको दोनों पोलों में क्यों कन्वर्ट करेगा? इन द सेम में हम वही बोल रहे हैं कि जो अपना जगह में जो कर रहा है उसको आप म्यूचुअल रेस्पेक्ट का बात करता है तो आप उसको खराब है बोल के नहीं करना चाहिए। इसको ऐसा अभी यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा हमेशा क्रिश्चियन इंडिविजुअल ऐसे डिबेट लगते रहता है, इसलिए जब भी कन्वर्जन बोलता है तो डायरेक्ट हम लोग को लग जाता है क्रिश्चियन कन्वर्जन मीन्स टू ऑल। हाँ, जहाँ इंडिजिनस का बात है डेफिनेटली ऑल्सो इंडिजिनस, लेकिन हमको ये मानते हैं ट्रेडिशन कल्चर डेफिनेटली यू ऑल्सो फॉलो, अभी अप्रिशिएट है, लेकिन हमको ये भी मानना है कि हम जब बोलता है कि ट्रेडिशन कल्चर, आवर ट्रेडिशन कल्चर इज, आवर ट्रेडिशन इज यूनिक, आवर कल्चर इज यूनिक, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या आवर फेथ इज नॉट यूनिक? मेरा फेथ भी तो यूनिक है। ट्रेडिशन को बचाना है बोलते हैं, कल्चर को बचाना है, क्या हम फेथ को नहीं बचाना है? फेथ इज आल्सो इक्वल इम्पोर्टेंट, रादर फेथ इज, ट्रेडिशन एंड कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ। ये बात को, ये सच्चाई को आप जितलाने नहीं सकेगा। हाँ, अलग अपना अपना सुविधा का हिसाब से इंटरप्रिटेशन हो सकता है, वी डोंट डिनाई इट, लेकिन ट्रूथ इज दैट tradition and culture, whatever we are wearing, whatever we are expressing, is the expression of our faith only.